Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, Danval Pranam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So we'll see this. Hare Krishna Mataji. Chapter 1, Sloka 29. Hare Krishna Mataji. Just repeat after. Hare Krishna Mataji. Vepatuscha sharira me Vepatuscha sharire me Roma harshascha jayate Romaharshascha jayate Gandivam sranshate hastat Gandivam samsrate hasta Vakseva paridhayate Vakcheva paridhyadayate Vepatuscha sharire me Vepatuscha sharire me Roma harshascha jayate Romaharshascha jayate Gandivam sranshate hastat Gandivam Vakchaiva paridhayate. paridhayate. Let's see the synonyms. Vepatuhu, trembling of the body. Cha also. Sharire, on the body. Me, my. Roma harshaha, standing of hair on end. Cha also. Jayate is taking place. Gandivam, the bow of Arjuna. Sramshate is slipping. Hastat, from the hand. Tvak, skin. Cha, also. Eva, certainly. Paridhyayate is burning. Translation: my whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. Does anyone like to read the purport? Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. There are two kinds of trembling of the body and two kinds of standings of the hair on end. Such phenomena occur either in great spiritual ecstasy or out of great fear under material conditions. There is no fear in transcendental realization. Arjuna's symptoms in this situation are out of material fear, namely loss of life. This is evident from other symptoms also. He became so impatient that his famous bow, Gandiva, was slipping from his hands. And because his heart was burning within him, he was feeling a burning sensation of the skin. All these are due to a material conception of life. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. We'll see just one more sloka. 1.30. Nacha sanknovi avastatum brahmativa cha me manaha nimittani cha pashyami viparitani keshava. Synonyms: na, nor. Cha also. Sagnomi, am I able. Avastatum, to stay. Brahmati, forgetting. Iva, as. Cha, and. Me, my. Manaha, mind. Nimittani, causes. Cha, also. Pashyami, I see. Viparitani, just the opposite. Keshava, O killer of the demon Keshi. Krishna. Translation: I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself, and my mind is reeling. I see only cause of misfortune, O Krishna, killer of the Keshi demon. Yes, Mataji, can you read this also? Hare Krishna Mataji. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Due to his impatience, Arjuna was unable to stay on the battlefield, and he was forgetting himself on account of the weakness of his mind. Excessive attachment for material things puts a man in a bewildering condition of existence. Bhayam dvitya abhiniveshitaha. Such fearfulness and loss of mental equilibrium take place in persons who are too affected by material conditions. Arjuna envisioned
unhappiness in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. The word nimitta is significant. When a man sees only frustration in his expectations, he thinks, why am I here? Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in the Supreme Self. Arjuna is supposed to show disregard for self interest by submission to the will of Krishna, who is everyone's real self interest. The conditioned soul forgets this and therefore suffers material pains. Arjuna thought that his victory in the battlefield. Battle would only be a cause of limitation for him. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखागिनांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So 1.29 श्लोका। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंशते हस्तात् गच्छैव परिधायते। My whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. Hare Krishna. तो अभी तक हमने देखा कि अर्जुना ऑपोजिट पार्टी को देखा और कौरवस को देखा and he is having these symptoms, right? So the symptoms can, two ways the symptom can happen. एक है spiritual ecstasy में, great spiritual ecstasy, और एक है material conditions. अगर आपको एग्जाम है कल तो आज क्या होगा, पूरा टेंशन स्टार्ट होगा और एग्जाम हॉल में भी टेंशन है ना। तो ये सिम्टम्स दो टाइप का होता है। मतलब अभी कभी कोई भक्त एक भाव स्टेज में है, प्रेम भक्ति है, तो चैतन्य महाप्रभु तब जगन्नाथ को देखा जगन्नाथपुरी में, वो है स्पिरिचुअल एक्सटेसी। तब क्या हुआ, आंख में आंसू आ गया और उसका पूरा शरीर ट्रम्बलिंग हो गया और बेहोश हो गया था। तो डिफरेंस क्या है, स्पिरिचुअल एक्सटेसी में भी ये सिम्टम्स होता है और मटेरियल कंडीशन स्ट्रेस में भी ये सिम्टम्स होता है, बट डिफरेंस है कि देयर इज नो फियर इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। ओके, सो ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन में फियर नहीं होता है। So this is why it is very important to know that we have to be in spiritual path first. Okay, so as we chant, all the anarthas get washed away, and then what happens? These symptoms become evidence. So here Arjuna's symptoms is because of material fear. तो पहला सिम्टम है कि अगर भक्ति में आया तो मटेरियल फियर नहीं होता है, क्योंकि भाई अवश्य रक्षिबे कृष्णा, राइट, रक्षिष्यत इति विश्वासो। तो वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ कि जो कुछ सिचुएशन में मैं हो, कृष्णा जरूर हमारा हेल्प करेगा। तो एक भक्त को अचंचल विश्वास है। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गया, 1 साल कुछ नहीं हुआ ना, कुछ प्रीचिंग कुछ नहीं हुआ, बट उनको बहुत अचंचल विश्वास है। वो बोला कि भक्ति नहीं, वेदा नहीं, नाम खूब धरो। हाँ, तो मेरे पास भक्ति नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, बट नाम खूब धरो। आई हैड सो मच फेथ इन योर होली नेम। तो ये था विश्वास, एक उत्तम भक्त का विश्वास है कि किसी भी सिचुएशन में
कृष्णा अवश्य रक्षे भी करेगा। तो इसके लिए फियर नहीं होता है, भक्त फियरलेस होता है। तो फियरलेसनेस इज अ क्वालिटी ऑफ अ प्योर डिवोटी। बट इधर अर्जुना का सिम्टम्स क्यों है? क्योंकि वो मटेरियल फियर में है, वो मेरा कजिन्स को क्या होगा, और ऑल दिस कंपैशन सिन सब कुछ उनके मन में चले गए, तो इसलिए ये सिम्टम्स आ गए। सो द टू काइंड्स ऑफ ट्रेम्बलिंग ऑफ द बॉडी, मतलब दो अवस्था में ऐसा हो सकता है, एक है स्पिरिचुअल एक्सटेसी, सेकंड है मटेरियल कंडीशन में। तो क्या फर्क पड़ता है? फियर नहीं होता है, ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन में फियर नहीं होता है। तब राधा रानी कृष्ण से विरह हुआ था और ब्रजवासी वो विरह में था, तब उनको फियर नहीं था, ठीक है। तो वो ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी है, बट फियर का पार्ट नहीं था। तो ये सिम्टम्स अर्जुना को अभी हो गया। तो नेक्स्ट श्लोका में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only cause of misfortune, O killer of Krishna, killer of the Keshi demon. तो कृष्णा का नाम क्या है? केशवा, right? केशवा mean who killed the Keshi demon. Right? केशवा is the killer of Keshi demon. तो केशी demon कौन से रूप में आया था वृंदावन में? हाँ, तो एक केशी घाट देखा आपने तब? हाँ, कनेक्ट किया। तो वृंदावन में केशी घाट एक जगह है। तब आप वृंदावन परिक्रमा करेगा तो यमुना के किनारे है, तो वो केशी घाट तो भौस के रूप में आया, और कृष्णा अपने फिस्ट से, मतलब हाथ से वो केशी डीमन को मार दिया। तो कृष्णा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किलर ऑफ द केशी डीमन, दैट्स केशवा। और वो जयदेव गोस्वामी का दशावतार सूत्र में ऐसे बोला, केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता बुद्ध शरीरा। सो कभी सभी लोग आपसे पूछ रहे हैं कि कृष्णा सिर्फ विष्णु के एक अवतार है ना, मतलब दशावतार में एक होता है। तब ऐसा पूछा तो आपको ये रेफरेंस दे सकता है कि जयदेव गोस्वामी शुद्ध भक्त है, और वो दशावतार सूत्र में ऐसा लिखा है कि केशव धृता, ऐसा नहीं लिखा है केशव धृता कृष्ण शरीरा, केशवा तो कृष्ण होता है, केशव धृता बुद्ध शरीरा है वो। तो इसलिए लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, ये कृष्णा परम दिव्योत्तम पुरुष है, वो जानकारी उनको नहीं है। और इधर प्रभुपाद ने जी ने बोला कि one's real self-interest lies in Krishna, and the conditioned soul forgets this. That's why he suffers. तो when do we suffer? हमारे प्रॉब्लम्स सब कुछ किधर स्टार्ट होता है? तब हम कृष्ण को फॉरगेट करता है, मतलब we start forgetting कृष्णा। बोल तो क्या करेगा? हम मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट करेगा, मतलब हमारा इंद्रिय संतृप्ति के पीछे चल रहा है, और कृष्ण हमारे गोल और सेल्फ इंटरेस्ट है कृष्ण, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर इट। तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, बोला कि कृष्ण बुलिया जीव भोग वांछा करे। दैट मीन्स व्हाट? कृष्ण बुलिया। एक और श्लोक है मध्य लीला, या कृष्ण बुली से जीव अनादि बहिर, हाँ जापतीय तारे, यस। कृष्णा बुलिया जीव भोग वांछा करे, तो मतलब जापतीय तारे। तो अर्थ क्या है प्रभु? तब हम कृष्ण को बुलाएगा, फिर माया जाए। हाँ, कृष्णा बुलिया मतलब विल फॉरगेट कृष्णा, जीव भोग वांछा करे। जीव क्या करता है? भोग वांछा, सेंस इंद्रिय संतृप्ति करता है, तो तब माया आएगा। तो इसलिए तो हम, और एक और प्लेस में बोला कि कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्णा तहा नहीं माया राधिकार। हाँ, तो कृष्ण सूर्य समा है, माया अंधकार है, यहाँ कृष्णा तहा नहीं माया राधिकार। तो तब सूर्य है, अंधकार तो नहीं होता है, तो इसी तरह तब कृष्ण है, माया हमको टच नहीं करेगा। तो हमारा problems, the real cause of our problem is we are forgetting Krishna. There is no Krishna. वो यही है डिफरेंस गृहमेदी और गृहस्था। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है? अब किसी के घर गया तो उधर एक ऑल्टर है, वो लोग भोग ऑफर करते हैं, प्रसाद खाता है, नाम जप करता है, भगवत गीता भागवतम क्लास लेता है, मीन्स सुनता है, तो दैट इज गृहस्थ आश्रम। तब कृष्ण नहीं होता है, तो दे गृहमेदी है ना, गृहम अंधकूप हम बोलता है प्रहलाद महाराज। तो यही है डिफरेंस। कृष्ण इज द सेंटर। तब आप एक कॉम्पस लेगा और सर्कल्स बनाएगा,
एक ही सेंटर है, कितना सर्कल्स बना सकते हैं हम एक सेंटर में? कितना? हाँ, मिनी, हाँ, एक ही सेंटर है, सेंटर एक है, उधर कॉम्पस रख के कितना सर्कल्स? हाँ, बहुत सर्कल्स। अगर सेंटर्स डिफरेंट होता है तो एक ही सर्कल बना, मतलब 2-3 सर्कल आप ड्रॉ करेगा तो सेंटर डिफरेंट डिफरेंट होता है, देन ऑल द सर्कल्स विल क्लैश। इसी तरह अगर एक परिवार का सबका इंटरेस्ट कृष्ण होता है, मतलब कृष्ण हमारे सेंटर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ में। सबका लाइफ, मतलब एवरीथिंग विल गोस वेरी स्मूथली। अगर कृष्ण सेंटर में नहीं है, स्टार्टेड प्रॉब्लम स्टार्ट्स। क्योंकि आप ही देखो, एक भक्त का मतलब डे कैसे स्टार्ट होता है? सुबह सुबह उठता है, मंगलारती करता है, और जब करता है पूरा माइंड शांत होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सेवा है, भोग बनाना है, मतलब सेवा करना है। लाइफ तो बहुत बिजी होता है। हाँ, अगर कुछ कृष्ण की सेवा नहीं करता है तो पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। आप कृष्ण कॉन्शियस के में आने के बाद लाइफ बहुत चेंज हुआ ना। पहला थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सबको बड़ा बड़ा लगता है, हाँ, तब अभी कुछ भी हुआ तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हम एक छोटा बच्चे के तरह बिग बिग बिल्डिंग्स को देखता है, हाँ, तब हमको बहुत ऊंचा लगता है। अभी हम कृष्णा कॉन्शियस के फ्लाइट में उड़ रहे हैं, तो फ्लाइट तो उड़ गया, तो उधर से हम नीचे देखा तो ऑल बिल्डिंग्स छोटा छोटा लगता है, मैच बॉक्स जैसा हो गया। तो ऐसी है। तो हम कृष्णा कॉन्शियस के प्लेन में उतर गए। अभी हमको क्या करना चाहिए? फ्यूल ऑयल डालना है, नहीं तो प्लेन क्रैश होगा। तो वो फ्यूल क्या है? हरिनाम है। फिर भी अगर वो फ्यूल नहीं है तो हमारा हरिनाम जब कुछ भी नहीं चलेगा। कृष्ण, हाँ, वो प्लेन ही कृष्ण कॉन्शियसनेस है, बट उसका फ्यूल क्या होता है? और प्रीचिंग करने के लिए, जब करने के लिए क्या चाहिए? भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? अब क्या कर रहे हैं अभी? एसोसिएशन, साधु संगा, हाँ, वो ही है फ्यूल, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगा। तो एसोसिएशन डेफिनेटली वी हैव टू हैव एसोसिएशन, वो फ्यूल जैसा है। मतलब हम तो कृष्णा कॉन्शियस के प्लेन में चढ़ गए, अभी फ्यूल डालना है, नहीं तो मतलब एसोसिएशन, विदाउट एसोसिएशन नथिंग होगा। हाँ, यस प्रभु, हाँ, पेट्रोल, वो ही है एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन नहीं है और गाड़ी स्लो 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 जाके अच्छा ड्राइवर, अच्छा, ड्राइवर तो प्रभुपाद जी है, तो प्रभु, हाँ। तो अगर आप फ्लाइट में चढ़ गया तो पायलट से पूछेगा कि ये फ्लाइट करेक्ट डेस्टिनेशन में जाएगा क्या, आपका सर्टिफिकेट दिखाओ, ऐसा नहीं पूछेगा ना। इसी तरह स्पिरिचुअल मास्टर से भी कुछ ऐसा नहीं, डाउट नहीं करना है। स्पिरिचुअल मास्टर हमको, अगर आप अमेरिका के टिकट खरीदा तो अमेरिका में पहुंच जाएगा, बट क्या करना है हमको? सीट में सीट बेल्ट डाल के उधर रहना है, उतरना नहीं है। मतलब यू हैव टू स्टे अलाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, फॉल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम माया आ गया और कुछ मिस्टेक्स हो गया, फिर भी अगर साधु संगा है, एसोसिएशन है, तो गाड़ी चलेगा। एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुंबई का लोकल ट्रेन में गया? कितना ऐसा है? हाँ, तो आपको अंदर कैसे जाना है? अब अंदर आप अभी आपको चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, नहीं हटा सका तो ऐसे ऐसे ही खड़ा होने में पीपल पुश करेगा आपको, ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही हम अंदर जाएगा। अगर आपका स्टेशन आ गया तो आपको बाहर आना है, जाना है, तो क्या करना है? सिर्फ खड़ा होना, पुश पुश करेगा। इसी तरह है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब डिवोटीज हमको पुश करेगा। जो हमारा भक्ति अच्छा नहीं है, हम जब नहीं करता है, टेस्ट नहीं है हरिनाम में, कुछ भी कुछ प्रॉब्लम है, शास्त्र नहीं पढ़ सकता, बट एसोसिएशन विल मेक अस डू। वही है, तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा भक्ति लता बीज टेंटर है, एक प्लांट, मतलब भक्ति लता बीज कैसा होता है? क्रीपर है, क्रीपर मनी प्लांट को देखा, उसको एक सपोर्ट चाहिए, नहीं तो इट कांट गो। सो वो सपोर्ट है साधु संगा, एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन नहीं है तो भक्ति इट ड्राई होता है। तो इसलिए अर्जुन का अर्जुन का एसोसिएशन कौन है? कृष्णा। सो व्हेन वी चांट हरि नाम, जब हरि नाम जब करता है और आरती देखता है और शास्त्र पढ़ता है, वी आर एसोसिएटिंग विद कृष्णा।
कृष्ण ने बोला जो कोई शास्त्र पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, वो बुद्धि से मुझे आरती करता है, मतलब वर्शिप करता है। तो स्वाध्याय, स्टडिंग स्क्रिप्चर्स आल्सो एसोसिएटिंग विद कृष्णा। तो वी आर एसोसिएटिंग विद प्रभुपाद। जब कोरोना टाइम आ गया था कि मुझे बहुत दुख आया कि कुछ एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, किसी डिवोटी को मीट नहीं करता है, अभी क्या करूं। अच्छा हुआ कि ऑनलाइन सत्संग आ गया, फिर भी आई वाज मिसिंग। तो इसलिए मेरा शिक्षा गुरु ने बोला कि हाँ, आपके घर में एक शुद्ध भक्त है। तो मैंने कहा कौन कौन है शुद्ध भक्त? प्रभुपाद जी उनके बुक की तरह बैठा है, तो डेली एसोसिएट करो प्रभुपाद जी से, उसका लेक्चर सुन लो। तो मतलब आप कुछ काम कर रहा है, भोग बनाता है या क्लीनिंग करता है, वॉशिंग कुछ भी करता है, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना के करो, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी का लेक्चर बहुत स्ट्रांग होता है। वो हिंदी में भी लेक्चर है, बंगाली में भी है ना लेक्चर, हाँ सभी इंग्लिश में भी है। तो प्लीज लिसन टू प्रभुपाद्स लेक्चर, वो बहुत स्ट्रांग है। 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप सुन लो, बहुत आपको, आपका मन में जो कुछ भी डाउट है सब कुछ प्रभुपाद जी क्लियर करेगा और आपको गाइड करने लगेगा, क्योंकि वी विल बिकम डिपेंडेंट ऑन प्रभुपाद. Okay, that's a real association. So our real interest should be on Krishna, and when we forget Krishna, we suffers in material planes. और एक और श्लोक है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.117. कृष्णा बुली से जीवा अनादि बहिर्मुखा, अतेवा माया तरे दिया संसारा दुखा. Forgetting Krishna, the living entity is attracted by the external feature from time immemorial. Therefore, the illusionary energy Maya gives him all kind of miseries in material existence. So, तब हम कृष्ण को बुलाए, what do you say? Forgetting? बोलना. हाँ, तो तब क्या होगा, माया हमको कैप्चर करेगा. और वो गजेंद्र का स्टोरी है ना, गजेंद्र एक्चुअली लैंड एनिमल है. वो एक्सीडेंटली वाटर में गया सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, एंजॉय करने के लिए. तब कौन आया? क्रोकोडाइल उनको पकड़ लिया. तो 1000 years, 1000 साल, हाँ, तो फाइट हुआ. फिर क्या हुआ, क्रोकोडाइल वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और गजेंद्र वीक हो गया. क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल वाटर एनिमल है, वो पानी में रहता है क्रोकोडाइल, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ. तो उसमें परपट में प्रभुपाद जी लिखा था कि हम भी गजेंद्र की तरह है. हम गोलोक वृंदावन में रहने वाला था, हम तो कुछ गलती किया, वो ये संसारा में आ गया, ये दुखालय मशाश्वत में. और इधर ये क्रोकोडाइल कौन है? माया देवी. ये उनका घर है, माया का घर है ये भौतिक लोग. तो माया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हम वीक होने लगेगा, है ना. तो तब गजेंद्र ने क्या किया, भगवान को बुलाया. वो एक गजेंद्र स्तुति है, क्या है, हाँ हाँ हम हरे तव, नहीं वो नहीं, वो वृत्रासुर का है. एक ब्यूटीफुल गजेंद्र स्तुति होता है. नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय. ओके, तो मतलब गजेंद्र कौन था प्रीवियस जन्म में, आपको पता है? वो कैसे हाथी बन गया? हाँ, राजा था, वो इंद्रदुम्न महाराज था. हाँ, तो क्या कैसे वो हाथी बन गया? तो एक दिन इंद्रदुम्न महाराज मेडिटेशन कर रहा था और एक ऋषि आ गए उधर, भूल गए उनका नाम. एक ऋषि आ गया, तो इंद्रदुम्न महाराज भगवान हरि को मतलब मेडिटेट ध्यान कर रहा था, तो उसको पता नहीं चला कि राजा आ गया, तो इसलिए वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया. ऋषि को रिस्पेक्ट नहीं दिया. तो ऋषि ने सोचा कि अरे इंद्रदुम्न महाराज ऐसा शुद्ध भक्त कैसे बन गया, तो पर्पसली मुझे अवॉइड कर रहे हैं. तो एक हाथी के तरह ऐसा बैठा है, हाथी को देखा किसी जगह में बैठा तो ऐसे ही बैठा, स्लोली उठ जाएगा ना. तो इसलिए वो कर्स किया, शाप दिया कि अगले जन्म में आप हाथी बन जाओ. फिर वो शाप देने के बाद इंद्रदुम्न महाराज को पता चला कि शाप हुआ, तो वो माफी मांगा और बोला कि मैं पर्पसली ऐसा नहीं किया, मैं भगवान को याद कर रहा था. तो तब ऋषि ने बोला कि ठीक है, मैं कर्स तो दे दिया, अभी वापस नहीं ले सकता, तो एक और मैं ब्लेसिंग देगा कि वो हाथी जन्म में आपको मोक्ष मिलेगा और भगवान को देख सकता है. जैसा वो नालकुबेरा मणिग्रीवा को नारद मुनि कर्स किया, they became trees. Then
बट क्या हुआ, कृष्ण ने डिलीवर किया। इसी तरह इंद्रदुम्न महाराज हाथी बन गया। और वो क्रोकोडाइल कौन था? कोई ऋषि पाया, नहीं नहीं ऋषि नहीं, माया देवी। माया देवी तो वो एक उदाहरण है, ऋषि नहीं। वो है हुहु गंधर्वा। एक गंधर्व था, हुहु गंधर्व। वो क्या किया, एक ऐसी मस्ती में एक मतलब एक पॉन्ड में नहा रहा था, तब एक ऋषि आया, दूसरा ऋषि, और वो नहाने लगा। तो ये गंधर्व नीचे से जाके उनका पैर खिला दिया। तो ऋषि ने शाप दिया, तू तू क्रोकोडाइल के जैसे पीछे में ऐसे आके मुझे खिला रहे हैं, तो अगले जन्म में तू क्रोकोडाइल बन गया। ठीक है, तो वो सब हो गया। तो गजेंद्र ने स्तुति बोला, उनको याद आया, तब वो डिस्ट्रेस में था, उनको याद आया कि वो पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज था, और उनका वो डिवोशनल सर्विस याद आया। ठीक है, तो उनका प्रेयर, ही वाज ऑफरिंग लोटस फ्लावर। और तब विष्णु आ गया गरुड़ के ऊपर, बहुत जल्दी आ गया। तब सुदर्शन चक्र क्या किया, क्रोकोडाइल को मार। तो मतलब क्रोकोडाइल को पहला मुक्ति मिल गया। वो क्यों? हाँ, जैसा कालिया को भगवान नहीं मारा ना, उनका पॉइजन हटा दिया। ही डिडंट किल कालिया। क्यों? बिकॉज कालिया टुक शेल्टर ऑफ यमुना। यमुना इज अ प्योर डिवोटी। इसी तरह तब क्रोकोडाइल ने शुद्ध भक्त इंद्रदुम्न महाराज और गजेंद्र के पैर पकड़ लिया। इसलिए तो हम भी प्रभुपाद का पैर पकड़ना है, हमारा गुरु महाराज का पैर पकड़ना है। हमका कुछ योग्यता नहीं है वापस जाने का, बट सिर्फ गुरु महाराज और प्रभुपाद के मर्सी से हम जा सकते हैं। मतलब प्रभुपाद जी ने बोला ना, अगर आप ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करो, जब करो, अच्छा भक्ति करो, तो मैं आपको वापस लेके जा सकता है। तो प्रभुपाद जी को ऐसा कर सकते हैं, वो एक शुद्ध भक्त है। ठीक है, तो गजेंद्र के तरह हम भी ऐसा मतलब माया के वर्ल्ड में आ गया। तो यहाँ दुर्गा देवी बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट भगवान ये भी बोला कि माँ में वंश क्या है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में वय प्रबत्यन्ते माया एताम तरन्ति ते। माया भी उनका एनर्जी है। तो अगर हम कृष्ण के शरण लिया तो माया पार कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Sorry, my Hindi is not good. Just because tomorrow Namnishta Prabhu will be back, so we can start from where you stop. Thank you for giving this opportunity to serve Bhagavad Gita. Hare Krishna. Any questions, or can we stop here? Hare Krishna, everyone. Thank you for joining. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। क्या प्रभु? हाँ, सीरियसली सभी चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। अब तो बहुत लकी है, बंगाली जानते हैं तो सब कुछ। कृष्ण ने बोला मत्तस ज्ञानम अपोहनम च, वही हमको मेमोरी देता है, वही बुलाता है, सब कुछ कृष्ण नहीं करता है। हरे कृष्ण एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां